everyone, welcome to my channel. This is Ritika Sthana. Today we are going to discuss about a short essay, Dream Children, a Reverie, written by Charles Lamb in his book Essays of Elia. This essay was written in the year 1821 and was published in the London Magazine in 1822. This essay was merged or combined with the other collections of Charles Lamb, and this book was again published in the name of Essays of Elia in 1823. Charles Lamb was born on 10th of Feb in 1775 in London, England, and died on 27th of December in 1834. He was known and considered as Prince of English essayist, author, critic, poet, and is always remembered for his autobiographical essays, which contains the pathetic aspects of his life, which shows his innermost longings, and also it deals with the themes of regret, past memories, lost self, imaginations, and human emotions. Lamb's essays began to appear in London magazines under the pseudonym Elia in order to hide his original identity. Lamb reveals much of himself indirectly and incidentally in his essays, and in this book, most of his essays are written in personal and conversational forms. And so, Dream Children is also an autobiographical essay जो इनकी पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड है, और इन पर्सनल एसेज में चार्ल्स लैम्ब अपना पेन नेम इलिया यूज करते थे. At the age of 14, he had to quit his studies and worked in the British East India Company. Actually, चार्ल्स लैम्ब की पर्सनल लाइफ बहुत से ट्रैजिक इंसिडेंट्स से भरी हुई थी. His mentally unstable sister killed his mother in front of him. He lost his brother John Lamb, and also he loved a girl named Anne Simmons or Alice since 7 years, but she refused his proposal and so he couldn't marry with her. So, in this essay, he has expressed his frustration of being a bachelor all the life. Let's study in detail about the essay Dream Children, a Reverie. Reverie means pleasantly lost in thought, दिन में देखा हुआ सपना या daydreaming. So, Charles Lamb is dreaming about his two imaginary children, Alice and John. Alice जो इनकी बेटी है and John इनका बेटा है. So here, author fancies that his two children came to him to tell them interesting facts about their great-grandmother, Mrs. Field. Lamb अपने बच्चों Alice and John को उनकी great-grandmother, Mrs. Field के नेचर, उनके बचपन के इंसिडेंट्स एंड पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो नॉर्फॉक के एक बहुत बड़े घर में रहती थी जो इस घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा था. इस घर का कनेक्शन किसी एक हॉरिबल एपिसोड से था, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस हाउस इज दैट इट वॉज बिलीव्ड दैट द स्टोरी ऑफ द ट्रैजिक मर्डर ऑफ 2 चिल्ड्रन वॉज कार्व्ड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ दैट ग्रेट हॉल. नॉर्फॉक के उस बड़े से घर के बड़े से हॉल की चिमनी पर लकड़ी पर तराशी हुई एक पूरी कहानी थी जो बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड टाइटल से घड़ी हुई थी. The story of this ballad is about 2 children who were left a vast property by their father. They were given to the charge of their uncle, who planned to get possession of the property by making away with the children. He hired 2 ruffians to slay them in a wood, but one of them, being more tender-hearted, killed the other and then abandoned the children in the wood. The children perished, and the robin redbreast covered them with leaves. The wrath of God fell upon the wicked uncle, who lost his sons and his goods and died in jail. The surviving ruffian was arrested of robbery, condemned to death, and confessed the deed. This was the whole story written over there. बट एक फुलिश रिच पर्सन ने उसे वुडन से एक मॉडर्न स्टाइल के मार्बल चिमनी पीस में बदल दिया, विदाउट एनी स्टोरी रिटन अपॉन इट. आफ्टर नोइंग दिस, एलिस गॉट एंग्री एंड अनहैप्पी टू. इस बात पर वो अपनी मदर एलिस की तरह लुक देती हैं. देन ही वेंट ऑन टेलिंग फर्दर, मिसेस फील्ड वॉज नॉट द रियल ओनर ऑफ दिस हाउस, शी वॉज द ओनली चार्ज ऑफ इट. चार्ल्स लैम्ब उन्हें बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छी रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड लेडी थी. वो अपने व्यवहार और मैनर्स में बहुत अच्छी थी. उनकी धार्मिकता, रिलीजियस डिवोशंस इतने महान थे कि सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे. वो इस घर को अपना घर समझकर बहुत केयर से रखती थी. ऐसा लगता था जैसे वो उनका खुद का घर हो. पर बाद में इस घर के रियल ओनर ने घर के सारे ब्यूटीफुल एंड यूनिक ऑर्नामेंट्स निकाल दिए और अपने बड़े से नए फैशनेबल मैंशन में लगा दिए. वो इतने ऑकवर्ड लग रही थी जैसे किसी ने लेडी सी टॉडी गिल्ट के
मॉडर्न एंड रिच ड्राइंग रूम में पुरानी सी टूम रख दी। ऑन दिस हिज सन जॉन स्माइल्ड एंड सेड दैट वुड बी फुलिश इंडीड। फिर उन्होंने बताया कि उनकी ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड की डेथ कैसे हुई थी। उनकी फ्यूनरल पर उन्हें रिस्पेक्ट पे करने उनके नेबर्स एंड इवन दूर दूर से रिच पुअर हर तरह की जेंट्री आई थी। वो इतनी ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी कि उन्हें साल्ट्री रिलीजियस सॉन्ग एंड बाइबल के टेस्टामेंट बाय हार्ट याद थे। वो आगे बताते हैं दैट शी वॉज सच अ टॉल एंड ग्रेसफुल लेडी। अपने यूथ टाइम में वो बहुत अच्छी डांसर भी थी। हियरिंग दिस एलिस रिएक्टेड बाय शेकिंग हर राइट फुट एज इफ शी वॉन्ट्स टू टेल अस दैट शी इज़ ऑल्सो अ गुड डांसर लाइक हर ग्रेट ग्रैंड मदर। पर फिर कैंसर नाम की बीमारी उन्हें हो गई, जिसके दर्द ने भले उनके शरीर को झुका दिया बट इट कुडंट बेंड हर गुड स्पिरिट एंड फेथ। फिर वो बताते हैं कि उनकी दादी एक खाली से चैम्बर और यू कैन से रूम में उस बड़े से आलिशान घर में अकेले सोया करती थी और बताती थी कि उन्हें 2 बच्चों की आत्माएं आधी रात में सीढ़ियों पर ग्लाइडिंग करते हुए दिखाई पड़ती थी, बट दोज इनोसेंट्स वुड डू नो हार्म। पर मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाया करता था। मैं इतना रिलीजियस नहीं था बट मैंने कभी उन आत्माओं को नहीं देखा। इस बात पर उनके बेटे जॉन ने अपनी आईब्रोज को फैला लिया एंड ही ट्राइड टू लुक करेजियस। देन ऑथर ने उन्हें बताया कि ग्रैंड मदर उनके सभी ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत प्यार करती थी। वो हॉलीडेज़ में उन्हीं के पास जाते थे। वो उन्हें बताते हैं कि मैं घंटों तक अकेला घूमता रहता था। वहाँ बड़े से मैंशन में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं। आई स्पेंड मेनी आवर्स बाय माई सेल्फ इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ द रोम। यहाँ चार्ल्स लैम्ब ने अपने वर्क में विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर के 12 रोमन सीजर की मूर्तियों का रेफरेंस दिया है अपने वर्क को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। उनके हेड्स मार्बल स्टोन के बने थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनमें जान हो और वो जिंदा हो जाएंगे या मैं उनके साथ मार्बल का हो जाऊंगा। इसके अलावा उन बड़े बड़े खाली कमरों में फटी पुरानी बेकार सी चीज़ें, तस्वीरें लटक रही थी। ओक ट्री से बने पैनल्स एंड लकड़ी के दरवाजे बेकार तरह से सड़ चुके थे। इस घर के अंदर कुछ ओल्ड फैशन गार्डन्स भी थे जिनमें मैं घंटों तक अकेला भटकने से थकता नहीं था। पीचेस एंड नेक्ट्रीन्स वहाँ वॉल्स के सहारे लटके रहते थे बट मुझे उन्हें तोड़ने की परमिशन नहीं थी। देवर फॉरबिडन फ्रूट्स। यहाँ पर भी चार्ल्स लैम्ब ने जॉन मिल्टन के फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट में फॉरबिडन फ्रूट्स जो टर्म यूज़ हुआ एडम एंड ईव के लिए, उस टर्म को यूज़ किया है। देयर वर यू ट्रीज ऑन द फर्स, रेड बेरीज, फर एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड्स वेयर ही यूज टू लाई डाउन इन द फ्रेश ग्रास। गार्डन में खुशबू बहुत अच्छी आती थी जहाँ ऑरेंज एंड लाइम के पेड़ के पास वो धूप सेकते थे। इस बात पर जॉन चुपके से प्लेट में पंच ऑफ ग्रेप्स ले आता है। एलिस भी ये नोटिस करती हैं। फिर दोनों बांट के साथ में वो खाते हैं। देन इन अ मोर हाइटेंड टोन ही टोल्ड देम हाउ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन बट जॉन लैम्ब उनके चाचा को बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत स्मार्ट हैंडसम थे। उनमें स्पिरिट थी सब कुछ करने की, एक किंग की तरह। एंड ऑल्सो ही नेवर लाइक्स टू सिट अलोन। ही यूज टू डू हॉर्स राइडिंग। कोई बाउंड्री उन्हें बांध के नहीं रख सकती थी। ही वॉज सो ब्रेव दैट एवरीबडी एडमायर्स हिम अ लॉट। वो मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर चलते थे व्हेन आई वॉज अ लेम फूटेड बॉय। मेरे भाई का जब पैर टूट गया मैं इतना केयरफुल नहीं था जितना वो मेरे लिए थे। जॉन लैम्ब की डेथ हुए बहुत टाइम हो गया पर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उनकी डेथ हुई हो। यही डिस्टेंस है लाइफ एंड डेथ के बीच। मुझे लगता था मैं उसकी डेथ को झेल जाऊंगा, मुझे उसकी याद नहीं आएगी, पर बाद में उसकी डेथ ने मुझे बहुत डराया। मैं इस पेन को, इस ग्रीफ को दिल में दबा के रखता था। मैं रोया नहीं। वो जिंदा होते और मैं मर चुका होता तो ऐसा नहीं कर पाते। मेरी डेथ को मेरा भाई जॉन लैम्ब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वन बाय वन अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने सामने खोना, सिस्टर का मेंटल होना, उनका असाइलम जाना, ये स्ट्रगल और डर उन्हें बहुत डराता रहा। एलिस एंड जॉन स्टार्टेड क्राइंग ऑन दिस एंड दे इंसिस्टेड नॉट टू टेल एनी मोर अबाउट देयर अंकल जॉन लैम्ब। दे वॉन्टेड टू लिसन स्टोरी अबाउट देयर प्रिटी डेड मदर। Then he further tells them that he was in love with Alice for 7 long years. Sometimes he was in hope, but sometimes he gets disappointed by her response. It was very difficult to convince her. While telling this, he saw his daughter Alice and gets confused. Alice अपनी माँ की तरह लग रही थी। वो बच्चे अचानक से फेंट और दूर होते जा रहे थे। We are not Alice, nor of thee, nor are we children at all. एलिस के बच्चे बाटम उनके हस्बैंड को अपना फादर बोलेंगे, तुमको नहीं। हम वो आत्माएं हैं जो लीड नदी के किनारे इंतज़ार कर रही थी कि हमें कभी ज़िंदगी मिलेगी, पर हमें ना लाइफ मिली ना नाम मिला।
क्योंकि तुम्हारी तो एलिस से शादी ही नहीं हुई। यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब अचानक से अपने सपने से जाग जाते हैं। उन्होंने अपने आप को अपनी आर्म चेयर पर लेटा हुआ पाया। ही वॉज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट दीज 2 चिल्ड्रन। उनके बगल में उनकी सिस्टर ब्रिजेट सो रही थी एंड जॉन लैम्ब वॉज गॉन फॉर एवर। And this is all about the essay Dream Children, A Reverie by Charles Lamb. Thank you so much for watching the whole video. I tried my best to cover all the points of this essay, which will help you for sure. Thanks again, and do like, comment, share and subscribe the channel if you like the video.